خاص جو دن آنے والا ہے وہ ہے تو مسیح خداوند کی ولادت کا دن ہے، اور میں نہیں چاہوں گا کہ میں اس پر کچھ بولوں. میں پیاسا ہوں کہ میرا فادر اس پر بولے اور ہم سب اس کو سنیں. لیکن پھر سوچا کہ کچھ نہ کچھ تو بولنا ہی پڑے گا. تو یہ ایک بائبل اسٹڈی بنائی گئی جس کا مقصد اور جس کا عنوان ہے گریٹ جوائے، خوشخبری، نہایت بڑی خوشخبری. اور یہ بنا کے میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور اس کے لیے جو حوالہ مین ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے لوک چیپٹر 2 8-14. لوکا کی انجیل 2 باب 8ویں آیت سے 14ویں آیت تک. اور یہ ندیم بھائی آپ سب کے لیے پڑھیں گے. ندیم بھائی. لوکا 2 باب 8ویں سے 14ویں آیت، جس کی مرکزی آیت جو ہے وہ آیت نمبر 10 ہوگی. چرواہے اور فرشتے. اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگے چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے. مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشخبری کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی یسوع مسیح خداوند. اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنے میں پڑا ہوا پاؤ گے. اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم والا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں کے میں جن سے وہ راضی ہے صلح. مرکزی آیت ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی. پاک کلام کو پڑھے، اس میں جنرل اسی خداوند زمین آسمان کے خالق و مالک، تیرا کلام ہماری زندگی اور تیرا کلام وجہ ہے کہ ہم اس دنیا میں موجود ہیں. ہم سب کو اپنے کلام کے وسیلے سے عقل، دانائی اور بخشش عطا فرما. ہمارے کان، ہمارے ذہن تیار کر میرے رب کو چھو، تمام شیطانی طاقتوں کو باندھ دے اور بخش دے خداوند کہ یہ خوشی کی خبر ہم اپنے دلوں میں برسانے والے بن سکیں. تیرے بیٹے اپنے نجات دہندہ یسوع ناصری کے نام سے مانگتا ہوں، سنا بخش دے. آمین. عزیزو، ازل سے لے کر اور قیامت تک 2 رویے ہیں اس دنیا میں. انسان کا رویہ ہے ڈرنا اور خوف، اور خدا کا رویہ ہے معاف کرنا اور دینا. اور یہ رویہ آپ دیکھتے رہیں پورے کلام میں. جب آپ پڑھیں گے پیدائش سے مکاشفہ تک تو آپ بار بار دیکھیں گے جتنی دیر تک گناہ سرزد نہیں ہوا، خوف نہیں آیا، جہاں گناہ آ گیا وہاں سے مکاشفہ تک خوف، ڈر یہ ختم نہیں ہو رہا انسان کی زندگی سے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں اس مقام سے اپنے آپ کو گرا چکا ہوں. اب مسیح خداوند کا آنا اور خوشی کی بشارت دینا یہ کوئی معمولی بشارت نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ جتنی بڑی خوشی کی بشارت ہے اتنا ہی بڑا دن ہے یہ جسے ہم کرسمس کہتے ہیں. اس کرسمس میں مسیح خداوند کی پیدائش تو پادری صاحب ہمیں 24 تاریخ کو بتائیں گے،
लेकिन इससे रिलेटेड कुछ हस्तियां हैं जो हमने बार बार पढ़ा, बार बार सुना, ड्रामों में किया, हिस्से भी लिए ड्रामों में, ड्रामे देखे भी, टैबलो भी, ड्रामे भी, कि फरिश्ते, सितारा, मजूसी और गड़ेबी, ये चार एलिमेंट्स हैं, दो आसमानी है, दो जमीनी है, और इनका रिलेशनशिप इस क्रिसमस में बहुत हद तक हमें उस डायरेक्शन को वाज़ा करने में मदद देता है जब हम 24 तारीख को कलाम को सुनेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, पादरी साहब भी जानते हैं, आप सब भी जानते हैं कि इंसान ने पहला गुनाह नहीं किया था, अम्मा हवा से पहला गुनाह नहीं हुआ। गुनाह सबसे पहले फरिश्ते से हुआ, तकब्बुर किया था उस लूसीफर ने। इससे पहले कि आदम और हवा को खुदा ने इस दुनिया में बनाया, पहला गुनाह उस फरिश्ते ने किया, जिसकी सजा उसको और उसके साथ 1/3 एंजल्स को खुदा ने दी, और बाकी फरिश्ते देख रहे थे कि साढ़े साथी छुटे गए हैं, क्योंकि उन्होंने गुनाह किया है, क्योंकि उन्होंने प्राइड इनमें आई है, तकब्बुर किया है। फरिश्ते उस मुनज्जी की इंतजार में है। याद रखिएगा, फरिश्तों को बनाने वाला भी वही खालिक है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो कुछ बना उसके वसीले के बगैर कुछ नहीं बना। फिर बाइबल में लिखा है कि तमाम मखलूकात, अभी हम ज़बूर पढ़ रहे थे कि दरख्त उसकी इंतजार में खुश हैं, परिंदे उसकी इंतजार में खुश हैं, समंदर की मछली उसके इंतजार में है। अभी जो भाई साहब ने ज़बूर हमसे पढ़वाया, अजीजों, बाइबल में ये भी लिखा, आपने पढ़ा होगा कि तमाम कायनात दर्द ज़हन में कराहती है। वो सजा जो अम्मा हवा को मिली वो पूरी कायनात को मिली। आज वो फरिश्ते सबसे ज्यादा खुश है कि चलो साढ़ा बंदोबस्त होना है। वो मरियम के पास, वो रिश्ता के पास, वो यूसुफ के पास, वो जगह जगह जा रहे हैं, गडरियों के पास, और खुशी की खबर दे रहे हैं कि अब वो मंजिल करीब आ गई है, अब वो जिसके लिए पूरी कायनात इंतजार कर रही है वो करीब आ गया है कि मसीह खुदा पैदा होने वाले हैं। फिर दूसरा है सितारा। सितारा एक बहुत अजीब, इसकी मैंने हिस्ट्री पढ़ी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 3-4 दिन मैं इसी सितारे के मसले में रहा कि सितारा क्या चीज है। इट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी स्टार, याद रखिएगा। अय्यूब की किताब में और मुकाशवा की किताब में पादरी साहब जानते हैं कि फरिश्तों को सितारा कहा गया, फरिश्तों को सितारे की शबीह दी गई। अब ये जो सितारा है, आप सारे ड्राइव करते हैं, सब जानते हैं, अगर आप रात को 9 बजे न्यूयॉर्क जा रहे हैं, न्यू जर्सी से जो कि 50-60 मील दूर है, और आप एक स्टार देखें और उस स्टार की कीमत में जाए तो 1 घंटे की मुसाफत के बाद आप न्यूयॉर्क को पहुंच जाएंगे, लेकिन स्टार वहीं खड़ा होगा जहां वो था। अब आप ये सोचें कि 25 स्क्वायर माइल का छोटा सा यरूशलेम, और वो सितारा में जाके एक 5 मरले के मकान के ऊपर जहां मसीह खुदावंद है, जहां यूसुफ है, वो वहां पर कैसे बता रहा है कि यहां मसीह है? क्या ऐसा सितारे बता सकते हैं? वो एक अजीब सितारा था, और उसको मानने वाले जो हैं, जिन्हें मैगी, वाइजमैन या किंग कहा जाता है, वो कोई आम आदमी नहीं है। आज जब मैं दोबारा से ये तैयारी करके मैं पढ़ रहा था, यकीन करें मेरी आंखों में आंसू आ गए कि हम तो इब्राहिम की बड़ी बातें करते हैं कि ईमानदारों का बाप है, इनकी कभी हमने सोचा नहीं कि मैंने किया क्या है। आज मैं आपको बताता हूँ कि मैंने भी अभी इसको देखा, एक्सप्लोर किया 3-4 दिन में, आपको बताता हूँ। मशरिक से ही आए थे, और ये आपको बता दूं एक और चीज कि जरूरी नहीं कि मैं आपको जो बात बताऊं वो कलाम में लिखी हो। कलाम में जो कुछ लिखा है उस वक्त की हिस्ट्री में हिस्टोरियन साथ साथ लिख रहे थे। जैसे लिखा गया कि सूर्या के हाकम कर्नीलियस के हक में हेरोदिस बादशाह है, पेंतुस पिलातुस, these are the timings, these are the people के लिखने वाला बता रहा है कि फलाने वाले एंडेसी थे, एक थे हुक्मरान थे हुक्मरान से, उनकी अपनी हिस्ट्रीज है। याद रखिएगा, अगर मूसा लिख सकता है 1000 साल पहले मसीह से, तो दानियल ने भी कुछ लिखा था पर्शिया में। दानियल नबी वो है जिसको पर्शिया के हुक्मरान ने मैगी का, वाइज मैन का पहला खिताब जो था। मैगी जो है कि मैजिशियन या मैजिशियन की जो रूट वर्ड है मैगी, उसको कहते हैं वाइज मैन। Daniel was the first wise man in Persia. 1000 साल पहले, 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 10
अब ये जो मशरिक से लोग आए हैं, इनके लिए ये पता चला एक ईरान से है, एक इंडिया से है और एक अरब से है। इनका नाम भी है बताया, वो भी मैं लिख के लाया। अब जो इंडिया से आया है वो 4000 मील का सफर करके आया, जो ईरान से है वो 1000 मील का सफर करके आया, और जो अरब से है वो 700 माइल का सफर करके बैठे हम पहुंचा। ऊंटों पे आए थे और ऊंट की मैंने स्पीड आज पता की तो 25 मील से ज्यादा दिन में सफर नहीं कर सकता ऊंट। तो जो इंडिया से है उसे 160 दिन लगेगा मुसलसल चले, सूरज के गुरूब होने से, सूरज के चढ़ने से, और जो ईरान से है उसे 40 दिन, और जो यहाँ से अरब से है उसे 28 दिन, ये मिनिमम है। लेकिन उन्होंने रास्ते में दरिया है, समुद्र है, रुके हैं, अनाज खरीदा है, बीमार हुए हैं, सो मेनी थिंग्स, वो यहाँ पहुंचे हैं। ये मैंने इसलिए बताया कि जब मैं आगे जाकर बताऊंगा कि मसीह की उम्र क्या थी जब मजूसी आए तो फिर हमें पता चलेगा कि वो सितारे को देखकर चले हैं। सारे अपने अपने घरों से निकले हैं, कोई 4000 मील से, कोई 1000 मील से, कोई 700 मील से। लेकिन मजे की बात यह है कि यरूशलेम को इकट्ठे आकर मिलते हैं, और जब वहां मिलते हैं तो क्या होता है, वहां पर वो जो सितारा है वो उन्हें नजर नहीं आता। जब उन्हें सितारा नजर नहीं आता तो वो क्या करते हैं, वो आपस में उनकी मुलाकात होती है। याद रखिएगा उनकी सबकी जुबान अलग अलग है। मे बी दे वर हैविंग सम ट्रांसलेटर्स विद देम, भी एक पर्शियन है, एक इंडियन है, एक अरब है, इनकी सबकी जुबान एक। आपको पता है मालूम किताब में जब यहूदी आए थे तो वहां क्या था कि वो जुबान एक बोल रहा था, 12 आदमी की जुबानें वहां सुनी जा रही थी कि सिर्फ ज्यू लोग जो थे, they were scattered in different areas, they were having their own languages। तो यहां पर तो ये लोग ही बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन ये दानियल नबी को जानते थे। इन्होंने, ये वो ईमानदार हैं जो मुंतज़िर थे कि कोई मसाया आएगा और हम उस मसाया को जाकर पूछेंगे, हम उस मसाया, और बड़े दलेर लोग हैं, ये नहीं जानते कि हम किस मुल्क में जाएंगे, हम किन लोगों में जाएंगे, उनकी जुबान क्या होगी, रास्ते में क्या सौगात आएंगी, हमें को मार भी सकता है, जंगली जानवर है, सो मेनी थिंग्स। और कोई प्रॉमिस नहीं किया किसी फरिश्ते ने इनके साथ जैसे इब्राहिम के साथ हुआ, कोई खुदा ने इनसे मुलाकात नहीं की जैसे इब्राहिम के साथ की। ये अपने ऊपर, और दानियल की वो किताब पढ़ते हुए 24 बार की 17वीं 9वीं और 7वीं आयत को पढ़ते हुए ये सारे अपनी अपनी मंजिल पे आए, और यरूशलेम में आके इकट्ठे हुए। वहां सितारा इन्हें नजर नहीं आया। जब वहां इन्हें सितारा नजर नहीं आया तो उन्होंने एक दूसरे से पूछा, तो लोगों ने बोला कि बादशाह के बेटे की बात कर रहे हो तो बादशाह ने अपनी सरकार चले गए, तो ये वहां गए। जब वहां गए तो पता चला कि वो यहाँ पैदा नहीं हुआ, बल्कि उसने कहा कि मुझे भी बताना कि वो कहाँ है ताकि मैं उसको जाऊं और मैं उसको क्या करूं, सजदा करूं, क्योंकि वो धोखा देकर इनको पूछना चाहता था ताकि उसी खुदा उसको मारे। लेकिन बड़ी प्यारी आयत थोड़ी सी आगे पढ़ता हूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, बादशाह के घर को पहुंच गए क्योंकि सितारा नजर नहीं आया। नौ बड़ी मजे की बात, वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, निकले, और देखो जो सितारा उन्होंने पूर्व में देखा था, अगेन सेम स्टार, जो उन्होंने देखा था उनके आगे से चला यहां तक तो उस जगह के ऊपर जा खड़ा जहां वो बचा था। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए, अगेन निहायत खुश हुए। वो सितारा जो मसीह खुदावंद के घर पे जाके ठहरता है, वो मजूसी जो है, जो इतनी दूर से चले हैं, और वो जब उस सितारे को देखते हैं तो वो सितारा क्या करता है, उनको मसीह खुदावंद के घर के ऊपर लेके आता है। क्या वो सितारा इतना नीचा आ सकता है कि स्पेसिफाइड घर के ऊपर आके खड़ा हो गया? हाँ, खुदा का फरिश्ता जो सितारा बनकर उनकी रहनुमाई करता है, और उन्हें, और मजे की बात है ये सितारा उन्हें नजर आ रहा है। वरना अगर यरूशलेम में यूसुफ के घर के ऊपर इतना करीब एक सितारा आ जाता तो लोग चीखे मार के शायद शहर छोड़ के भाग जाते कि क्या मत आ गई। लेकिन दे वर ऑल पीसफुल। इन तीनों ने देखा और ये गए, और उस वक्त मसीह खुदावंद की मैंने कल देख रहा था, आप भी देख लीजिएगा, ये टाइम सारा निकाल के। मसीह खुदावंद 1 साल की उम्र के थे, अपने सेम में भाग पढ़ रहे थे, छोटी छोटी बातें भी करते थे। इन्होंने मसीह को जाके प्यार किया, मसीह को गोद में उठाया, और फिर क्या किया, झुककर सजदा किया। 3 बादशाह, 3 अमीर आदमी, 3 साहब हस्ती आदमी हजारों मील का सफर करके, तकलीफें उठा के, और क्या कर रहे हैं, गरीब लकड़हारे के घर में आके उस छोटे 1 साल के बच्चे को जाके सजदा करके उसे अपना खुदा और अपना निजात दहिंदा मानते हैं।
یہ ہے ایمان اور محبت کا ایک لاجواب رشتہ جو انہوں نے پیش کیا۔ وہ یہودی نہیں تھے، وہ اہل کتاب نہیں تھے، انہیں کوئی گائیڈ نہیں کیا گیا، ان پر کوئی غیر زبان نہیں اتری، انہیں کوئی رویا نظر نہیں آئی۔ انہوں نے جو میجیشن تھے، جو کہ میگی تھے، جو کہ وائز مین تھے، انہوں نے ڈینیل کو دیکھا تھا، انہوں نے دیکھا تھا کہ اس ڈینیل کو ہمارے بادشاہ نے شیروں کی مانگ میں ڈالا تھا اور یہ بھوکے شیروں میں زندہ رہا تھا۔ انہوں نے اس کو شاید اپنا دیوتا مان لیا، شاید یہ دیوتا کا اوتار ہے، اور ڈینیل کی کتاب کو پڑھتے تھے، اور جیسے وہ 24 باب میں آئے انہوں نے دیکھا کہ ایک منصوب میں آنا ہے، اور اس منصوب کے لیے وہ یروشلم آتے ہیں۔ اور پھر پتہ کیا ہے؟ They were the first preachers, not Jews, Gentiles. They were the first preachers because now when they are going back to their homes, they are preaching. ہم نے وہ بادشاہ دیکھ لیا، ہم نے وہ مسیح دیکھ لیا، ہم نے اس کو مل لیا، ہم نے اس کو چوم لیا، ہم نے سونا مر لبان اس کو دے دیا۔ اور دوستوں یقین جانیے کہ اس وقت یوسف کو سونے کی بڑی ضرورت تھی، کیونکہ نیکسٹ ڈے اس کو لمبے سفر پہ جانا تھا۔ ایک غریب آدمی تھا، اس کے پاس شاید زیادہ نہیں تھا، لیکن خدا کو پتا تھا کہ کل میں نے اس کو نکال دینا ہے، ایک لمبے سفر پہ جائے گا، ایک نئے ملک پہ جائے گا، شاید اسے گھر لینا ہے، شاید اس کے پاس پیسے نہیں، سونا مل گیا بہت سارا۔ خدا نے کہا تھوڑا سا بیچ لے، تھوڑا سا رکھ لے، بیوی کو لے کے بھاگ جا، کیونکہ ہیرون اس بچے کو مار دے گا۔ ایک کردار ہے مجوسیوں کا۔ چلے گئے، آئے اور چلے گئے، لیکن جاتے جاتے ہزاروں زندگیوں کو تبدیل کرتے ہوئے گئے۔ جو ان کے پاس آیا، جب یہ اپنے گھروں میں گئے، کیونکہ عام آدمی نہیں تھے، سوسائٹی کے بڑے باعزت لوگ تھے، جب یہ گئے تو انہوں نے مسیح خداوند کے متعلق لوگوں کو بتایا، اور کیا ہوا کہ یہ مسیح خداوند کے پہلے گواہ بنے۔ دوسرا کریکٹر ہے گڈریوں کا۔ گڈریوں کے لیے میں آیت پڑھ دیتا ہوں، کا 2:10 میں ابھی پڑھی بھائی نے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو سارے ملک کے واسطے ہوگی۔ دوسری بڑی خوشی کی بشارت۔ پہلی بڑی خوشی کی بشارت کب ملی؟ جب سٹار دیکھا، they became overjoyed۔ جب انہوں نے سٹار دیکھا تو کیا ہوا؟ وہ خوش ہوئے۔ دوسری، جب گڈریوں کو فرشتوں نے کہا، گڈریے کون ہے؟ جو آؤٹ کیسٹ۔ مزے کی بات سنا، میں گڈریوں کے لیے پڑھ رہا تھا۔ گڈریے وہ لوگ ہیں جنہیں یہودی لوگ جو ہیں، جو ٹیمپل کے جو ہائی پریسٹ ٹائپ کے لوگ ہیں، وہ انہیں پسند نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں یہ سینرز ہیں، ہیبچوئل سینرز ہیں، یہ آؤٹ کیسے؟ کیونکہ وہ سبت کو چرچ نہیں آ سکتے، وہ اپنی بکریاں شکریاں لے کے کسی چراگاہ میں بیٹھے ہیں، اس چراگاہ سے وہ یروشلم نہیں آ سکتے، وہ سبت کی عبادت نہیں کر سکتے، وہ جو یہودیوں کی رسم و رواج ہے، طہارت ہے، عبادت ہے، وہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے سال میں ایک دفعہ آنا ہے، جب اون کاٹنے کا وقت آئے گا، بھیڑوں کو لائیں گے، اون کٹوائیں گے، بھیڑے بیچیں گے، اپنا سودا پانی کرنے کا چلے جائیں گے، پھر ہفتہ 10 دن کے بعد بھیڑے لیں گے اور اپنے چلیں گے۔ ان کی زندگی یہ ہے۔ اور ان کو اب کو بڑا مصری بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ جب یوسف کے بھائی آئے ہیں تو یوسف نے اپنے بھائیوں کو بولا کہ جشن کا علاقہ مانگ لو، بھائی سب لا دے، تو اس نے بولا کیوں، کیا لگا کہ فرعون جو ہے نا، ان کو جب پوچھے کیا پیش ہے تو بولنا ہم مویشی پالتے ہیں، تو فرعون کو مویشی پالنے والوں سے نفرت ہے، گوش ہو بھی ہے، وہ کوئی نہیں پسند کرتا، یہودی بھی ان کو پسند نہیں کرتے تھے، یہ گنہگار لوگ تصور کیے جاتے تھے۔ لیکن فرشتوں نے نہ تو ہیرودیس کے بادشاہ پہ رکنے کی کوشش کی، اس کو بھی انہوں نے آؤٹ پاس کر دیا، نہ وہ ٹیمپل میں گئے کہ جا کے میں ہائی پریسٹ کو بتاتا ہوں کہ مسیح پیدا ہو گیا۔ وہ کہاں گئے؟ گنہگار یہودیوں کے پاس، سب سے نچلے درجے کے لوگ، اور ان کو جا کے بولا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، غریبوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اس وقت کے وہ غریب لوگ تھے، اور انہوں نے کیا کیا؟ وہ اٹھے اور جلدی سے جا کر انہوں نے مسیح خداوند کو دیکھا، اور جو کچھ ان کے پاس تھا، وہ بھیڑ بکری کا بچہ جو کچھ تھا، وہ مسیح کو گفٹ کر کے آئے۔ اور جب وہ آئے تو لوگوں کو بتا رہے ہیں کیسا ہوتا۔ اب عملیاں بیٹھی ساری چیزوں پر غور کر رہی ہیں۔ اس حوالے کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تیسری دفعہ جو خوشی ملتی ہے وہ کب ملتی ہے؟ اچھا ایک اور آدمی تھوڑی سی آگے، اسی میں تھوڑا سا آگے جا کے لکھا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، یہ خوشخبری مسیح نے بھی بیان کی ہے، مسیح خداوند نے بھی خوشخبری کا بیان، جیسے فرشتوں نے کیا یا ستارے کو دیکھ کر ہوئے۔ مسیح خداوند جب
40 दिन का रोजा रखने के बाद रूह कुदस ने उनको, बाइबल में लिखा है, and the Spirit drove him towards the wilderness. यानी रूह कुदस उसको विल्डरनेस में ले गई और शैतान 40 दिन तक मुसलसल मसीह को आजमाता रहा। मसीह खुदावंद वापस आए और अब वो क्या करते हैं, नासरत में चले जाते हैं जो उनका घर है, जहां उसने परवरिश पाई, और अपने दस्तूर के मुताबिक सब्त के दिन इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हो गया। यशायाह नबी की किताब उसको दी गई और किताब खोलकर उसने मुकाम निकाला, यहाँ ये लिखा था, गौर कीजिएगा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ जीसस। वो जो जीसस ऑफ नासरत इस जर्नी में आ रहा है, उसका मकसद क्या है, उसका खुद कहा। ये उसकी ओपन मिनिस्ट्री का पहला सरमन है, ये याद रखिए, फर्स्ट सरमन ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसलिए उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। मसा क्या है? खुशखबरी का मसा। याद रखना इस चीज को। आज मसीह खुदावंद का इस दुनिया में आने का यह मकसद है कि मैं खुशखबरी का मसा दूं। अब एक आदमी बीमार है, उसे शिफा चाहिए, उसे शिफा का मसा चाहिए। एक आदमी नौकरी नहीं है, नौकरी चाहिए, उसे जॉब के लिए खुदा का मसा चाहिए। एक खानदान में लड़ाई है, झगड़ा है, नाराजगी है, नाइतफाकी है, उस खानदान को मसीह खुदावंद का वो मसा चाहिए जिससे प्यार आ जाए। लेकिन असल में मसा कौन सा है दोस्तों? कौन सा है? खुशखबरी का। इसके लिए मसीह आया। हम ये देखें कि ठीक है, मसीह का आना, वो बना तो बनाया, हमसे रिश्ता दबा हो चुका, सब कुछ हो चुका, लेकिन जब दुनिया में आया तो उस आने का मकसद क्या है कि मैं गरीबों को खुशखबरी का मसा देने के लिए आया। और ये गडरिये वही गरीब थे, इनको वही मसा दिया गया, खुशी का मसा। और वो अपनी आंखों से वो गुनहगार जो शायद इस काबिल नहीं थे कि वो हैकल में जाकर अगली सीटों पर बैठ सकते, शायद वो इस काबिल नहीं थे कि वो काहिन के उस मुकद्दस पानी के छीने ले सकते, शायद वो इस काबिल नहीं थे कि जब फसल का वक्त आता है तो वो उस बर्रे के पास खड़े हो सके। आज वो गुनहगार मसीह खुदावंद का अपनी आंखों के साथ नजारा करते हैं। शायद उन्होंने मसीह को छुआ, क्यों? वो गरीब हैं और उन्हें खुशखबरी दी गई है। यही मसीह खुदावंद का इस दुनिया में आने का मकसद है। आखिरी आयत आपके साथ पढ़ने जो पॉइंट है वो है इमाम 13 डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट। मुझे भाई ने बताया कि हमारे चर्च का नाम है डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट। तो यहाँ डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट सारे बैठे हुए हैं, कुछ पाकिस्तान में भी, उनके लिए क्राइस्ट है। इमाम 13 आयत रसूलों के इमाम है। इसमें सारे जो हमारे अपॉस्टल्स हैं उन्होंने क्या क्या काम किए उनको इसमें कंपोज किया गया है, लूका ने लिखा है। और यहाँ है 13-15 में पढ़ देता हूँ, लिखा है मगर शागिर्द डिसाइपल्स, मगर शागिर्द खुशी और रूह कुदस से मामूर होते रहे। बड़ी मजे की बात है, इसको गौर कीजिएगा। मुझे नहीं पता इंग्लिश में कैसी है, टेंस क्या है। मेरे हिसाब से इसका टेंस पता कौन सा बनना है भाई साहब? प्रेजेंट परमानेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। वो मुसलसल रूह कुदस से मामूर होते रहे, वो खुशी से मामूर होते रहे। रूह कुदस का मसा उन पे आ रहा है और आ रहा है और आ रहा है। खुशी उनमें आ रही है, खुशी उनमें आ रही है, खुशी कंटिन्यूसली, प्रेजेंट कंटिन्यूस, परमानेंट कंटिन्यूस। मजे की बात सुने। और ये मैं आपको इसलिए बताने लगा हूं, इसकी लिए खास वजह है। एक आदमी था, उसका बच्चा बीमार था, वो मसीह के शागिर्दों के पास गया। इसको भी देख ली। एक और आयत है, जब मसीह को एक औरत ने छुआ तो मुझे किसी ने छुआ, मुझे काम करके सुनते हैं, क्यों? मेरे से ताकत नहीं है। रूह कुदस जब हमारे अंदर आती है, जब खुशी और मामूरी हमारे अंदर आती है, तो हम जहां भी जाते हैं, हम जिससे भी मिलते हैं, हम उसे ब्लेस करते हैं। ये खुदा की तरफ से है। और जब हम किसी दूसरे को ब्लेस करते हैं तो खुदा फिर इनका ब्लैक कर देता है। जब हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, हमें मसीह नहीं मिलती। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमें करना है। और हम इसको जानें कि हमें इस क्रिसमस पर
खुदा की खुशियाँ मिली, जैसे शागिर्दों ने अपने आप को रूह कुदस में भरने की मुसलसल कोशिश की, जैसे गडरिये जो गुनाहगार हैं, जो आउटकास्टेड हैं, जो सिनर्स हैं, उन्होंने उसी खुदावन को जाकर छुआ, अपने हाथों से कबूल किया, प्यार किया। इसी तरह से वो गडरी हो जो अपना वाइस मैन है, उन्होंने उसी खुदावन को जाके सजदा करके कबूल किया और क्या बनाया? अपना मुनज्जी बनाया, अपना निजात दहिंदा बनाया। इसी तरह से हमें भी याद रखना है, क्रिसमस आने वाला है। और मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था कि एक छोटा बच्चा जस्टन, तो क्रिसमस से पहले 20-22 दिसंबर को उसकी अम्मी और अबू उसको कुछ गिफ्ट ला के देते हैं जो कि क्रिसमस से रिलेटेड है। उसमें चरनी है, फरिश्ते हैं, एंजल्स हैं, माँ मरियम है, छोटा सा बेबी जीसस है चरनी के अंदर पड़ा, यूसुफ है, कुछ फरिश्ते हैं, 3 ये खड़े हैं मजूसी, 1-2 गडरिये हैं, पूरा एक उन्होंने खिलौनों का सेट ला के दिया और लगाते भी हैं और उसको बता भी रहे हैं कि ये माँ मरियम थी, ये जोसेफ था, ये जीसस थे, ये वाइसमैन थे, ये शेफर्ड, ताकि बच्चे को एक कहानी याद हो जाए। और बच्चे ने अपने हाथ से चरनी में छोटी सी गुड़िया जो जीसस थे उसको उसने रखा और बड़ा खुश हो गया कि मैंने अपनी जिंदगी में फर्स्ट टाइम क्रिसमस ट्री को मैंने सजाया और एक मैंने किया था। अब वो समझो उसकी प्रॉपर्टी आते जाते उसको देखता था। 2 दिन के बाद उसकी दादी आ गई। दादी ने बोला कि जस्टिन, मैंने तेरे लिए क्रिसमस पर गिफ्ट ले रहे हैं, तुम्हारे साथ चल। कहते दादी चलो, उंगली पकड़ के गाड़ी में बैठा। दादी बहुत बड़ी उसको सुपर मार्केट में ले गई। वहां जाके दादी ने उसको बोला चल, अब सारे जो सुपर मार्केट है क्रिसमस की डेकोरेशन से भरी पड़ी है। वो जो सेल्स मैन है उसको पता है कि औरत बड़ी अमीर है, कोई ना कोई अच्छी गिफ्ट अपने पोते को लेके देगी। वो आके बताना शुरू हो गया कि ये सेंटा क्लॉज है, इसमें से गीत आते हैं, ये कैंडीज हैं, इसको दबाओ, इसमें से भी है, ये फ्लां है, ये फ्लां, सारे गिफ्ट दिखा रहा है और उस बच्चे को बता रहा है। बच्चा सब कुछ देख रहा, बड़े गौर से देखा, तो छोटा जस्टिन दुकानदार की तरफ देखता है, उसको कहता है, Where is baby Jesus? I can see him today. Where is baby Jesus? आज क्रिसमस पर हम और हमारे साथ पूरे मसीह इस क्रिसमस के दौर में हम दाखिल हो रहे हैं। हमारे पास सब कुछ है जो जस्टिन के पास है, लेकिन हम ये कभी कभी भूल जाते हैं। हमारी जिंदगी से कई दफा जब ऐसे हालात आ जाए, ऐसे वाकयात आ जाए, ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमारी जिंदगी से बेबी जीसस कभी कभी दूर हो जाता है। हम बेबी जीसस को कभी कभी अपने आप से जुदा कर देते हैं या हम उससे जुदा हो जाते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है कि मुझसे जुदा होकर तो कुछ नहीं कर सकते। If baby Jesus is in our life, अगर बेबी जीसस आज हमारी जिंदगियों में आ रहा है, हमारे दिल की चरनी में वो पैदा होगा, तो यकीन करें ये दुख, ये गम, ये परेशानियां, ये बच्चों की फिक्र, ये नौकरी की फिक्र, ये सेहत की फिक्र, ये सारी चीजें हमारे करीब आ ही नहीं सकती, क्योंकि लिखा है कि खुदा अपने बच्चों को मांगने से पहले जानता है वो किस किस चीज के मोहताज है। हम उसके बच्चे बन जाएं, हम बेबी जीसस को अपनी जिंदगी में ले आए, अपने दिलों से पैदा कर ले। बेशक हम गुनाहगार हैं, मैं मानता हूं सबसे बड़ा गुनाहगार है, लेकिन कोशिश ये करें कि मेरा यीशु मेरे दिल में पैदा हो, मेरा बेबी जीसस मेरे साथ रहे। क्योंकि जब तेरे हम मसीहा परस्तार बन गए, दुनिया की नजर में तो गुनाहगार बन गए। तो डरना नहीं, मुझे पता है बड़े बड़े इंसान होते हैं जो खुदा का काम करते हैं, जो खुदा के साथ चलते हैं, लेकिन बेबी जीसस साथ है, हमारी जिंदगी सहल है, हमारे तमाम मसाइल खुदा हमसे दूर करेगा। यही मेरा ईमान है और यही मेरा पैगाम है। खुदा आप सबको बड़ी करे। Baby Jesus wants to come in our heart. That was all about the messages. What is baby Jesus?
Himself manifested in this earth. He wants to come in our heart, the Holy One. So when He can come, when we can ask Him, please come in my heart. He said, I will come. What can us away from the baby Jesus? The sin. What is sin? The rebellious from God. खुदा से जो बगावत है वही एक सबसे बड़ा गुनाह है। अगर आप चाहते हैं खुदा यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आए, वेरी सिंपल है, क्योंकि जो हार्ड काम जो है वो खुदा यीशु मसीह ने कर दिया हुआ है। उसने सारी लानतें, सारी परेशानियां, सारे दुख, सारी मुसीबतें अपने खून की आखिरी बूंद तक उसने बहा दी ताकि हम जिंदगी पाए। आइए अपनी आंखें बंद करें, खुदा से दुआ करें, जरा गौर करें अपनी जिंदगियों पर। If you are sick and tired to deal with this world, and you cannot overcome one after one, you have the problem in your life, but you want to be a success in every area of your life. We can do. But we cannot do without baby Jesus in this great season. The reason is of Jesus Christ. And we can ask Him, please come in my heart. I want to give you my life totally and completely. If there's anything hinders, if there's any obstacle which may stop you, Jesus, I want to remove right now. But desperately I need you. Please come in my heart. आज ये आपकी दुआ होनी चाहिए। खुदा बाप तेरे शुक्र करते हैं तेरी रहमतों, तेरी बरकतों के लिए, इस खूबसूरत कलाम के लिए जो खुदा हमारी जिंदगी है, जिसके बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। तेरे बगैर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज मैं नहीं जानता, लेकिन तेरे बेटे और बेटियां तेरे हुजूर सर झुके हुए हैं और खुदा तेरे हुजूर इल्तिजा कर रहे हैं। तो खुदा बाप इन्हें अपनी उस रूह की भरपूरी से मामूल कर, जो खुशी है, ताकि इनकी जिंदगी में खुदा खूब कामयाबी हो। अब हर एक के लिए खुदा तेरी बरकत और सलामती, उम्र की दराजी, खुशहाली और खूब कामयाबी की दुआ करता हूँ। इनकी जिंदगी की हर एक टैग को खुदा तेरे हाथों में देता हूँ। ये सुना गुलाम खुदा इनकी जिंदगी में हमेशा इन्हें याद रहे और खुदा इस तेरे यीशु रूह से सील करता हूँ। नाम हर एक के लिए खुदा तेरी बरकत और सलामती चाहता हूँ। इनके हाउस होल्ड पर खुदा तेरी बरकत चाहता हूँ कि नाम दरख्त में अब से हमेशा तक खुदा तो इनके साथ रहना। व्हीकल्स पर खुदा तेरे हजारों फरिश्तों को मांग लेता हूँ ताकि वो उनके साथ साथ रहें। इनके घरों से खुदा हर किस्म की परेशानी, दुख, तकलीफ, बीमारी दूर रहे, ताकि इस लेट सीजन में जो खुदा जॉय का है, जो हैप्पीनेस का है, उसको खूब एंजॉय कर सकें। उनकी जो खुशी है खुदा वो दोबारा हो, खुदा ओवरफ्लो हो, जो बहुतों को खुदा सेल करने का वसीला बन सके, ताकि लोग जाने कि बिन यीशु के बेरंग है सारे। तेरा शुक्र करते हैं, तेरे ही नाम की तमजीद, तेरे ही नाम की सताइश करते हैं। के सारे प्लान
सारे प्रोग्राम जो हमारे खानदानी तौर पर हैं, क्रिस्चियन तौर पर हैं, खुदावंद इस कम्युनिटी में जाते हैं, खुदावंद वहाँ के हैं, इस मुल्क के हैं, मुल्क पाकिस्तान के लिए खुदावंद सब पर खुदावंद तेरी बरकत उस नाम दी जाते हैं। और ये दुआ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आइए खुदावंद इसका दुआ में शामिल हों। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी कुदरत से आसमान पर हुई होती है, जमीन पर भी, और उसको की आज मिले, सब अपने रसूल को माफ करते हैं, तुम भी अपने रसूल को माफ करो, हमें ज़िंदगी से ना, बल्कि बड़े से बचाओ, जो बादशाह, कुदरत और जलाल, हमेशा तेरे हैं। अब हमारे प्यारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, बातों की रफ़ाक़त और शराफ़त हाज़िर जमात के साथ, इनके सगरे ख़ानदानों के हर एक फ़र्द के साथ, मसीह कौम के साथ ताबत होती रहे, बनी इस्राएल कौम के साथ ताबत होती रहे जब तक तू ना आ जाए। आमीन। रब के साथ आपके साथ हो। रब साहब की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। गो इन पीस। God be with you. रिकॉर्डिंग मैं बंद कर दूँ। हाँ कितों होना इतने बाहर ही कर देना।